میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر فن شعر و سخن کی قسط 111 کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پہلے اور دوسرے حصے کو بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا اور اب بھی لوگوں کے تاثرات موصول ہو رہے ہیں۔ لیجئے جشن عزیز بلگامی کی رودات کا تیسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی، عزیز بے نوا کے فن کو دنیا بھول جائے گی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری دیکھی، اگر اس نے کبھی بازار فن میں شاعری دیکھی، اگر اس نے کبھی۔ بہت شکریہ سامعین کرام، محبتیں آپ تمام حضرات۔ جناب عزیز بلگامی صاحب کے نام اور سید ضیاء کاظم صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بلگامی صاحب کے ان کے نام کروں گا۔ آج کے ظلم سے فرعون بھی شرماتا ہے۔ کیا کہنے ہیں حضور آپ کے بلگامی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوب لکھا۔ آج کے ظلم سے فرعون بھی شرماتا ہے، کیونکہ یہ قتل کے منظر سے کہیں آگے ہے۔ دل بھی جھک جاتا ہے جذبات کی سوغات کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا ہے جذبات کی سوغات، یہ عبادت بھی میری سر سے کہیں آگے ہے۔ کس شان سے کی فکر عزیز، تو نے کس شان سے کی فکر کی تطہیر عزیز، فن تیرا حسن کے پیکر سے کہیں آگے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا، بہت اچھا، کہیں آگے ہے۔ کیا کہنے حضور، ماشاءاللہ۔ کاظم صاحب تشریف لائیے حضور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں عزیز بلگامی صاحب کو مبارکباد دوں گا اس جشن کے سلسلے میں۔ بہت شکریہ۔ آپ کے اشعار اکثر پڑھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار ہوتے ہیں، اور سنا بھی ہے آپ کو ہم نے۔ آپ کا جو لہجہ ہے، جو لہن ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو بہت ساری دعائیں۔ شکریہ شکریہ، جزاک اللہ، آمین۔ آج کی اس خوبصورت بز میں آپ تمام معزز احباب کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت بزم منعقد کی جا رہی ہے اصحاب قلم بدایوں اور گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی جانب سے، اور میں ہوں آپ کا نظامت کار خدمتگار خاکسار اے آر ساگر۔ تو اب بڑھاتے ہیں آج کی شام عزیز بلگامی صاحب کے نام۔ اب میں وہ اس کی نظامت کر رہے ہیں آپ۔ ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب وہ کچھ خیالات کا اظہار حضور عزیز بلگامی صاحب کی شان میں، مگر اس سے پہلے کہ میں ان کو سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، بلگامی صاحب کے دو اشعار ان کے نام کروں گا۔ اپنے خاموش، شعر سننے والے ہیں، بہت گہرائی ہے حضور، توجہ کیجیے گا۔ اپنے خاموش سمندر میں بھنور پیدا کر، اپنے خاموش سمندر میں بھنور پیدا کر، سپیاں خالی نہ رہ جائیں گوہر پیدا کر، دعاؤں میں اثر کی باتیں، خواب لگتی ہیں دعاؤں میں اثر کی باتیں، ہو سکے تجھ سے تو شکووں میں اثر پیدا کر۔ کیا بات ہے، ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب۔ جی، السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے صدر باوقار علی جناب تنویر پھول صاحب سے اجازت چاہتا ہوں۔ پتہ کیجیے۔ شکریہ جناب عالی۔ جملہ منتظمین مجلس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، علیم ہے اور عزیز ہے۔ بے شک۔ اور جب رب کریم جو کہ سراپا عزیز ہے کسی سے پیار کرتا ہے، پیار کرتے کرتے اپنے ایک بندہ کو عبدالعزیز بنا دیتا ہے، اور وہی عبدالعزیز اپنے علم و فن، شعور و آگہی کے ذریعے جب منظر نامے پر آتا ہے تو بقول شخص سے کہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ بے شک۔ آج کی یہ محفل اسی ہر دل عزیز بلغامی کے شان میں، ان کی فن کے تمام تر خدمات کے اطراف میں منعقد کی گئی ہے، وہ نہ کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ تو آج کی یہ محفل عزیز بلغامی صاحب کی شعری، ادبی اور تمام تر خدمات کے اعتراف میں آج ان اکابر شعر و ادب کی شہادت میں دراصل محسوب کیا جا رہا ہے کہ عزیز بلغامی ہر دل عزیزی ہیں، ان کی ہر دل عزیزی کو سلام۔ بہت شکریہ۔ میں فطری طور پر صنف انشائیہ سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی محفل ماشاء اللہ محترم عزیز بلغامی صاحب کی کہ فن کے اعتراف میں یہ محفل اعزاز ہے۔ بہت بہت مبارکباد جناب صالح اچھا صاحب، جو شروع میں بڑا ہی جامع ان کی ہفت جہات شخصیت سے متعلق مقالہ محترم نے پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شعر و فن یا علم و ادب پر بہت کچھ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا ہی قیمتی پہلو ہے جس کے لیے ہم نے تمہید باندھی تھی کہ اللہ رب العزت جناب عزیز بلغامی صاحب کو ہر دل عزیز یوں ہی نہیں بنا دیا ہے بلکہ ان کے فن ریاضت کے بدلے، اور جیسے اقبال، فیض، اصل میں بنیادی طور پر نثر سے اور انشائیہ سے تعلق ہے۔ آج حضرت عزیز بلغامی کو آپ دیکھیں اول تاخیر منور ہی منور ہے، نور ہی نور ہے سرتا قدم، ماشاءاللہ۔ اور بلکہ نظر بد نہ لگ جائے، وہ کالی سیاہی کالا ٹیکا کا کام ان کی ٹائی کر رہی ہے ماشاء اللہ۔ اور آج کی یہ محفل قرآن کی اس آیت کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کے برخلاف آج کی اس محفل کی قیادت و سیادت فرما رہی ہیں، بلکہ سرپرست اعلیٰ ہیں محترمہ زیب النساء زیبی بہنا۔ یہ دراصل ہم عظمت خواتین کا اعتراف کر رہے ہیں ان کی سرپرستی میں، اور اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ واقعی میں ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت آئی ہیں۔ اللہ نے آپ کو سرپرست اعلیٰ بنایا، بہت بہت مبارکباد۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن قبل عزیز بلغامی صاحب کا ایک شعر، 2 شعر میں نے پڑھا، اور مجھے جو ان کی ایک جہات شخصیت کے حوالے سے ایک اہم جہت کی طرف روشنی ڈالنی ہے، وہ یہ کہ ان کا شعر ہے بہت مشہور کہ حوصلہ باقی رہے آنکھوں میں دم باقی رہے، حوصلہ باقی رہے آنکھوں میں دم باقی رہے، انگلیاں کٹ جائیں ہاتھوں میں قلم باقی رہے۔ کیا بات ہے، انگلیاں کٹ جائیں ہاتھوں میں قلم باقی رہے۔ اور ایک شعر اور دیکھیں جہاں ہمیں اصل اپنے مقصد پر آنا ہے کہ چھوڑ جاتا ہوں عزیز اپنا کلام دل نشیں، چھوڑ جاتا ہوں عزیز اپنا کلام دل نشیں، نسل نو کے واسطے نقش قدم باقی رہے۔ علامہ اقبال ہو یا فیض ہو، آج بھی نسل نو کے ذہنوں میں اس قدر زندہ ہیں کہ ابھی ہندوستان کی جامعات میں نوجوانوں نے اپنے مطالبات کی تکمیل میں فیض کی وہ نظم ہم بھی دیکھیں گے جب پڑھنا شروع کیا تو ایوان میں جامعات کی انتظامیہ میں زلزلے آ گئے۔ آج بھی فیض نسل نو کے ذہنوں میں زندہ ہیں، اقبال زندہ ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اور آپ کے محبوب جن کی عزت و توقیر کے اعتراف میں آج ہم اور آپ یہ محفل منعقد کیے گئے ہیں، حضرت عزیز بلغامی، یہ بھی نسل نو کے ذہنوں میں محفوظ رہ گئے ہیں بئیں بنا کہ حکومت کرناٹک، بنگلورو کی جو حکومت ہے کرناٹک کی، بہت ساری نظموں کو، عزیز بلغامی صاحب کی نظموں کو اپنے نصاب میں شامل۔ ابھی ایک بڑی اچھی خبر آئی، کیونکہ تدریس سے میرا تعلق ہے،
اور دربھنگا للت نارائن متھلا یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں چھوٹا سا اردو کا معلم ہوں کہ جناب عزیز بلگامی صاحب پر ابھی PUC جونیئر انٹر کالج کے سالانہ سوالات میں جو امتحان متعین کیے گئے 100 نمبر کے امتحان میں سے 10 نمبر اسائنمنٹ بنانے کی جو تجویز رکھی گئی اس میں یہ سامنے کوسچن آیا بن کر کے، سوال یہ بن کر کے آیا کہ عزیز بلگامی صاحب جو انٹرویوز لینے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس انٹرویوز کو پیمانہ بنا کر بچے اسائنمنٹ تیار کریں، اور بڑے پیمانے پر جونیئر کالج کے طلباء نے عزیز بلگامی کے انٹرویوز کو اسائنمنٹ کی شکل میں اپنا موضوع سخن بنایا۔ تو قابل مبارکباد ہیں عزیز بلگامی کہ نئی نسلوں کے ذہن میں اپنی فنکارانہ، میں تو کہوں گا کہ اپنی فنکارانہ معراج کی بدولت اللہ نے آپ کو یہ مقبولیت دی ہے کہ نئی نسلوں کے ذہن میں اللہ پاک محفوظ کر رہا ہے۔ ای سعادت بزور بازو نے ستانہ بخشد خدائے بخشندہ۔ وہ میں یہی کہوں گا جناب ساغر بھائی، بڑی اچھی آپ نظامت کر رہے ہیں کہ فقیہ عزیز بلگامی صاحب کی نظر میں باضابطہ مدعو ہوتا تو ضرور شعر پڑھتا، لیکن اکابر کے بعد اب نہیں پڑھوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ کہ عزیز بلگامی صاحب کے قدموں میں ڈالتا ہوا بات ختم کروں کہ فقیہ عصر سے ملیے، فقیہ عصر سے ملیے ضرور محفل میں، یہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ ہے، یہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ خوش بختی ہمارے بڑا ہی محترم ترین شخصیت، بڑی پاکیزہ شخصیت جناب تنویر پھول صاحب مجھے بے پناہ دعا دیتے رہتے ہیں، ہمارے انجم بھائی ہیں، ہمارے رئیس اعظم حیدری بھائی صاحب ہیں، اور بے شمار آسمان علم و ادب کے درخشندہ ستارے، تمام لوگوں کی محبت میں میرا محبت بھرا سلام دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر عبدالودود قاسمی صاحب، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا آپ کے خوبصورت الفاظ، بہت اچھے انداز میں پیش کیا آپ نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں اور مختصر مگر جامع انداز میں آپ نے وہ بات کہہ ڈالی جو شاید ہم سارے مل کر بھی نہ کہہ پاتے۔ ایک ہی شعر میں آپ نے جیسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر کے چھوڑ دیا۔ سلامت ہیں حضور، ماشاءاللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہماری اس خوبصورت بزم تشریف لائے ہمارے پاس جناب ہمارے سینئر، ہمارے محترم قابل احترام جناب سید محسن رضی علوی صاحب، جو مجلس صدارت میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں دعوت سخن دوں، 2 اشعار عزیز بلگامی صاحب کے ان کے نام کروں گا۔ التجائیں تیری جا کر کہاں رک جاتی ہیں، التجائیں تیری جا کر کہاں رک جاتی ہیں، اب کے گردوں میں کوئی راہ گزر پیدا کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات پہ احسان نہ کرنا تیرا احسان ہوگا۔ اچھا ہے۔ وہ ایک جملہ بھی پڑھا سنا تھا، ایک میرے خیال میں انڈین فلم تھی، اس میں کہا مجھ پہ ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا، ہم پہ احسان نہ کرنا تیرا احسان۔ ساغر صاحب قطع خلاف وہاں پر فلم بعد میں آئی تھی، شعر پہلے تخلیق ہوا تھا۔ ماشاءاللہ کیا کہنا تو ماشاءاللہ، دوبارہ سنیے گا۔ ہم پہ احسان نہ کرنا تیرا احسان ہوگا، ہم پہ احسان نہ کرنا تیرا احسان ہوگا، نہ محسن کی نظر پیدا کر اپنی آنکھوں میں، نہ محسن کی نظر پیدا کر۔ تشریف لائیے حضور سید محسن رضی علوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو محترم جناب عزیز بلگامی صاحب کو ان کے اس جشن پہ دل کی گہرائیوں سے بے انتہا مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شعر و فن میں مزید ترقیاں اور کامیابیاں پیدا کرے۔ آمین آمین آمین۔ 2 شعر پہلے کہ خدا کے شکر میں جشن عزیز بلگامی، محترم جناب تنویر بھائی سے اجازت کے ساتھ کہ خدا کے شکر میں جشن عزیز بلگامی، سمجھ نہ پائیں اگر ہم تو اپنی ناکامی، زمانہ بھر جنہیں جانے ہیں ان کے شعروں سے، وہی تو شخص ہیں حضرت عزیز بلگامی۔ یہ تھے جناب سید محسن رضی علوی صاحب، ماشاءاللہ، بہت نے بہت ہی خوبصورت نظم سے ہمیں نوازا۔ بہت شکریہ حضور، سلامت رہیں، اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔ آپ کہتے ہیں آگے ہماری اس خوبصورت سرپرست اعلیٰ
تشریف لائی ہیں محترمہ زیبونسا زیبی صاحبہ. ایکچولی ان کے ایک تو نیٹ کا بھی ایشو رہتا ہے، دوسرا ان کی صحت بھی اس حوالے سے زیادہ ساتھ نہیں دے پاتی، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی. تو میں اب انہی کی جانب بڑھوں گا. تو 2 اشعار عزیز بلگامی صاحب کے ان کے نام کروں گا. تو 2 اشعار آپ کے نام بہن جناب عزیز بلگامی صاحب کے. یہ چھلکتے تو ہیں رخسار پہ ڈھلتے ہی نہیں، یہ چھلکتے تو ہیں رخسار پہ ڈھلتے ہی نہیں، آنسوؤں میں بھی ذرا عزم سفر پیدا کر. واہ کٹ تو سکتا واہ کٹ تو واہ عزم سکتا ہو سفر پیدا کرا جھکانے کٹ تو سکتا ہو جھکانے سے نہ جھکتا ہو کبھی، کٹ تو سکتا ہو جھکانے سے نہ جھکتا ہو کبھی، سر کوئی ایسا بھی ایک شوریدہ سر پیدا کر، سر کوئی ایسا سر پیدا کر. واہ 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 بہت بلا تمبید اس خوبصورت بزم کی سرپرست اعلیٰ محترمہ زیبونسا زیبی صاحب. بہت شکریہ یار ساگر صاحب. اور آج عزیز بلگامی صاحب کی ہم نے جشن رکھا ہے، اور گو کے دیر ہو گئی رکھنے میں، ان کو تو بہت پہلے ہمیں رکھ لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہر کام کو وقت مقرر ہوتا ہے. اور ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں عزیز بلگامی صاحب کو. اور جس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کام کو جو شیئر کیا وہاں پر، جتنی بھی چیزوں کو اس حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو چکی ہے، اور پرت در پرت جو ہے وہ کھلتے چلے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیز بلگامی صاحب، آپ نے ایک شعری صنف کا تذکرہ کیا ہے جس میں غزل کے حوالے سے کہا کہ آپ نے اختراع کی ہے. ایک منٹ میں اگر اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو چکے. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کسی بھی صنف کی اختراع کر دینا اردو ادب میں. تو وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پہلے سے وہ بتا دیں، میں پھر اپنا کلام پیش کرتی ہوں. اصل میں مصرع اولا میرا ہوتا ہے اور مصرع ثانی کسی دوسرے شاعر کا ہوتا ہے، اور پوری مکمل غزل اسی طرح چلتی ہے. یہ پہنچی حیدرآباد کو. حیدرآباد میں ایک نوجوان پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک مقالہ ہی لکھا ہے مشترکہ غزل پر، اور اس کا سارا کریڈٹ مجھے دیا ہے. ورنہ کئی لوگ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، لیکن پورے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ عزیز بلگامی کی اختراع ہے. بہت سادہ ہے یہ کام بہت سادہ ہے. کسی بھی شاعر کی غزل کو لے کر اس کے مصرعہ اولا کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور ہر مصرع ثانی پر گرہ لگا دی جاتی ہے، اور جب اس مکمل ہو جاتی ہے تو بہت غضب کی نظر آئی ہے. یعنی جو کچھ خیال اوریجنل شاعر کا ہوتا ہے وہ برقرار نہ رہ کر ایک نئی دنیا میں اپنے سامع کو، اپنے قاری کو لے جاتا ہے. کبھی وہ مقالہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تمام احباب کی خدمت میں. اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو تصدیق میں مل چکی ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے کہ یہ عزیز بلگامی کی ایجاد کردہ صنف سخن ہے. کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ مشترکہ غزل. اچھا، تو اس میں جو ہے پھر وہ آپ اوپر مینشن کرتے ہوں گے جس کی بھی غزل لے رہے ہیں اس کا نام بھی شاید مصرع اولا وہ تو عزیز بلگامی، مصرع ثانی جن کا ہے، جن کی بالکل وہ ایک غزل ان کی ہوگی. ٹھیک ہے جی، ان کا نام ساتھ میں شیئر کرتے ہیں. چلیے، بہت بڑا کام ہے اور اختراع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. آج آپ نے ہمیں ایک نئی شعری صنف سے متعارف کروایا، اور آپ کو اس جشن کی بھی ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. شگفتہ غزل صاحبہ بہت دیر سے ہمارے ساتھ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ ہمیں برداشت کر رہی ہیں، سن رہی ہیں. میں بتاؤں ان کے نام 2 شعر عزیز بلگامی صاحب کے پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں، ذہن تھا سوچ میں جذبات ہوں پیدا کیسے، ذہن تھا سوچ میں جذبات ہوں پیدا کیسے، دفعہ آئی صدا دل میں اتر پیدا کر. اتنے تاریک نہ تھے دن کے اجالے اے عزیز، اتنے تاریک نہ تھے دن کے اجالے اے عزیز، میری خواہش ہے کہ تو دن میں سحر پیدا کر، میری خواہش ہے کہ تو دن میں سحر پیدا کر. ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ، آپ
मुल्क में तशरीफ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और सबसे पहले तो मैं आज की शाम अली जनाब अजीज बिलगामी साहब के नाम से मंसूब है और आपका जश्न मनाया जा रहा है, तो ये बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आप तमाम अहबाब को। बहुत बहुत और आपकी अकीदतों को, मोहब्बतों को बहुत सलाम पेश करती हूँ कि आप वाकई काबिल कद्र और बहुत ही काबिल कद्र, काबिल एहतराम अच्छे इंसान और अच्छे शायर हैं। मैंने आपको अक्सर पढ़ती हूँ और सुनने का मौका तो नहीं मिला है, आज सुनूंगी इंशाल्लाह, लेकिन पढ़ा बहुत है, बेहतरीन कलाम होता है। तो अब मैं सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए मैं 4 मिसरे आपकी नजर करना चाहती हूँ कि अर्ज किया है कि आदाब पेश है मेरा खिदमत में आपकी। अजीज बिलगामी साहब की खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब पेश है मेरा खिदमत में आपकी, नजरें झुकी हुई हैं अकीदत में आपकी, नजरें झुकी हुई हैं अकीदत में आपकी, अल्फाज जो पिरोए हैं धागे में प्यार के, अल्फाज जो पिरोए हैं धागे में प्यार के, वो पेश कर रही हूँ मोहब्बत में आपकी। क्या बात है, अच्छा शेर है, क्या बात, बहुत खूब, अल्फाज जो पिरोए हैं धागे में प्यार के, वो पेश कर रही हूँ मोहब्बत में आपकी। क्या बात, पेश कर रही हूँ मोहब्बत में आपकी। एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद अकीदतों के साथ पेश करती हूँ। और यहीं से एक बेशुमार, माशाअल्लाह, बहुत आला डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहब, क्या बात है, अपने कलाम से नवाज रही थी। सलामत रहें बहन, अल्लाह पाक आपको उम्र खिजरी से नवाजें। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा शाहाना नाज साहिबा। इससे पहले कि मैं उनकी जानिब बढ़ूं, 2 अशआर अजीज बिलगामी साहब के। आज अजीज साहब मुझे माफ कीजिएगा अगर कहीं मैं गलत आपका कलाम पढ़ जाऊं। अच्छा लग रहा है, आज आपके लिए आम माफी है। आ गई फन में रवानी बड़ी आसानी से, क्या बात है, आ आ गई गई रवानी बड़ी आसानी से, प्यार है मुझको बहुत बहते हुए पानी से, है मुझे दिन के उजालों में चरागों की तलाश, है मुझे दिन के उजालों में चरागों की तलाश, क्यों अंधेरों में मुयस्सर हैं फरावानी से, क्यों अंधेरों में मुयस्सर हैं फरावानी। शाहाना नाज साहिबा तशरीफ लाई, अपने कलाम से नवाज़ें। सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस पुरवकार महफिल में मुझे मदद किया और सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहाना नाज है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी पाकिस्तान से है। तो मैं पहले 3 इशारात सबकी नजर जनाब सदर की इजाजत से। मेरे मिजाज की संजीदगी पे हंसते हैं, मेरे मिजाज की संजीदगी पे हंसते हैं, शऊर और फिक्र की बालीदगी पे हंसते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे मिजाज की संजीदगी पे हंसते हैं, शऊर और फिक्र की बालीदगी पे हंसते हैं, जो ओढ़े रखते हैं हरदम नकाब चेहरे पर, जो ओढ़े रखते हैं हरदम नकाब चेहरे पर, वो सारे लोग मेरी सादगी पे हंसते हैं। क्या बात है, और क्या बात, बहुत शुक्रिया। और शेर सुनिएगा कि उन्हें ये जिंदगी एक दिन बहुत रुलाएगी, उन्हें ये जिंदगी एक दिन बहुत रुलाएगी, जो जिंदगी में बहुत जिंदगी पे हंसते हैं। अरे वाह, क्या बात, अरे वाह, शुक्रिया। अब एक गजल आप सबकी वाज़ों समातों की नजर। जो ख्वाब बिखरे थे राह गुजर पर, जो ख्वाब बिखरे थे राह गुजर पर, वो चुन के लाने में देर कर दी, खड़े थे राहों में मुंतजिर हम, तुम ही ने आने में देर कर दी। अरे बहुत खूब, क्या कह रहे, बहुत शुक्रिया। हमारी सोचें रही हमेशा हमारी महरूमियों का बाइस, वाह, हमारी सोचें रही हमेशा हमारी महरूमियों का बाइस, कहीं से आने में देर कर दी, कहीं पे जाने में देर कर दी। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। न जाने क्यों आज दिल ये मेरा पुकारता है उसी घड़ी को,
आहा, क्या बात है, न नजात जाने अली। क्यों आज दिल ये मेरा पुकारता है उसे घड़ी को कि लौट आए घड़ी वो जिसमें तुम्हें बुलाने में देर करती। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा शेर है, क्या बात है। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। और हम अपनी नस्लों को दे रहे हैं अंधेरे मायूसियां मुसलसल। आहा, क्या कहना। हम अपनी नस्लों को दे रहे हैं अंधेरे मायूसियां मुसलसल। वजह ही ये कि हम ही ने अक्सर दिया जलाने में देर कर दी। क्या बात है, अरे क्या क्या बात बात है, बहुत सुभान खूब, अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या वाह। बात है, अच्छा बहुत शेर है, शुक्रिया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और करे मुकद्दर से शिकवा कैसा कि हम ही कच फहम थे, हम ही ने जो दिल में था उसको दिल में रखा, क्या बात, क्या तुम्हें बात। बताने में देर कर दी। देर क्या कर कहना। दी। दिल में था, दिल में रखा। तुम्हें बताने में देर कर दी। और बहुत जमाने गुजर गए हैं मगर ये एहसास है मुसलसल। अच्छा, वाह। बहुत जमाने गुजर गए हैं मगर ये एहसास है मुसलसल कि हमने की रूठने में उजलत, तुम्हें मनाने क्या में कहना। देर कर दी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो ख्वाब बिखरे तरह गुजर गई वो चुन के लाने में देर कर दी। खड़े थे क्या राहों में मुंतजिर हम, तुम ही ने आने में देर कर दी। बेहद शुक्रगुजार हूँ। दुआ माशा करें। क्या अस्सलाम माशाअल्लाह, वालेकुम। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, जबरदस्त बहुत सलामत शुक्रिया। हैं। ना- प्रोग्राम परवीन को वहीं शाकिर की बहुत याद आ गई। आज प्रोग्राम को वहीं बहुत खत्म शुक्रिया करते हैं, मेरे लिए ना। जहाँ अब प्रोग्राम को आगे फरमाना बढ़ाते हैं। अंदाज में कह रहे थे, क्या बात। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जनाब हैदर अलवी साहब। अब मैं उनकी जानिब बढ़ूंगा, मगर इससे पहले कि मैं उनकी जानिब बढ़ूं, सामीन कराम, आज की शाम अजीज बिलगामी साहब के नाम, और उनके नाम दो करूंगा शेर अजीज बिलगामी साहब के। आप फरमाते हैं, दामन सफर की धुन का कुशादा ना हो सका, दामन सफर की धुन का कुशादा न हो सका, तय हमसे हादसात का ज्यादा न हो सका, कुर्बानियों की राह से बचकर निकल गए, कुर्बानियों की राह से बचकर निकल गए, तर्जे सलफ का हमसे यादा न हो सका, तर्जे सलफ का हमसे यादा न हो सका। माशाल्लाह, तशरीफ लाए हैदर अलवी साहब, अगर आप मुझे सुन शायद शुरू में निकल गए। चलें। खैर, मुझे इजाजत दें तो मैं दो चार अशार अपने भी पेश कर दूं। अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। ये आज ही गजल हुई है, अख्तर इमाम अंजुम साहब देखिएगा। अता हो। अता कीजिए, अता कीजिए। जी इरशाद, इरशाद साहब। मिलेगा क्या तुम्हें सुनकर, हाँ, मिलेगा क्या तुम्हें सुनकर मेरे बीते फसाने को, हाँ, हाँ। क्या बात है, मिलेगा क्या तुम्हें सुनकर मेरे बीते फसाने को, क्या कहना। तुम ही लाइल्म हो शायद, खबर है सब जमाने को, क्या बात, क्या खबर है बात सब है। जमाने। क्या बात, खबर है सब जमाने को। क्या कहना। अभी हम गम रसीदा हैं, अभी ये बात रहने दो, हाँ, हाँ। क्या कहना। अभी हम गम रसीदा हैं, अभी ये बात अभी ये रहने बात दो, रहने दो। तुम्हें कैसे बताएंगे, बचा है क्या बताने को। हाँ, क्या हाँ, बात अच्छा है, है, अरे वाह, क्या अच्छा बात है, है, अरे वाह, वाह, वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह क्या वाह कहना, वाह। क्या क्या कहना। बात है। कैसे अभी बताएं। हम गम रसीदा हैं, अभी ये बात रहने दो, तुम्हें कैसे बताएंगे, बचा है क्या बताने को। क्या बात। और शेर देखिएगा, न कर तू गैर से मिलकर यूं मेरे कत्ल की बातें, हाँ, हाँ। वाह, वाह। न कर तू गैर से मिलकर यूं मेरे कत्ल की बातें, तेरा बस हिज्र काफी है मुझे जिंदा जलाने को, क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छे, ये जिंदा जलाने को। बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात है, क्या कह दिया सागर साहब, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना। ये तो मालूम है हमको, हमें तो रद्द ही होना है, हाँ, हाँ। ये तो मालूम है हमको, हमें तो रद्द ही होना है, तभी तो मान लेते हैं तुम्हारे हर बहाने को। हाय 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 हाय, क्या क्या बात बात है, है। बहुत खूब। रद्द होना क्या है और बात मान लेना, क्या बात है, क्या बात, अरे वाह वाह, अरे वाह। बहुत शुक्रिया। ये तो मालूम है हमको, हमें तो रद्द ही होना है, हाय हाय हाय, क्या कहना। तभी तो मान लेते हैं हमारे हर बहाने को, क्या और बात है, हमारे इश्क क्या से कहना। हमारे प्यार की बातें, हमारे इश्क के किस्से
हमारे हमारी प्यार प्यार की की बातें न जाने कौन कहता है छुपी बातें जमाने को। हाय हाय क्या हाय बात क्या है, बात क्या बात न जाने कौन माशाल्लाह कहता है की कहता है बातें। छुपी बातें वाला, क्या कहना। शजर जब तेज आंधी हो खिजां का दौर दौरा हो। हाँ हाँ वाह, शजर जब तेज आंधी हो खजां का दौर दौरा हो, गिरा देते हैं सब पत्ते हवा के संग उड़ाने को। क्या बात क्या क्या बात क्या कहना। और मक्ता पेश खिदमत है, बहा कर ले गई मौजें जो तिनके घर के थे सागर। हाँ 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 बहा कर ले गई मौजें जो तिनके घर के थे सागर, घर के से सागर। बड़ी मुश्किल से जोड़े थे वो अपना घर बसाने को। बड़ा बताना क्या क्या बात है बात है, क्या क्या बात है बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा क्या शेर है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हजूर। क्या बात, और तमाम अशार अच्छे थे, क्या बात। इसी के साथ ही मैं एक खूबसूरत मुधर और मैं कहूँगा कि रफी सानी, तो बहुत प्यारी सुरीले अंदाज हिदायत हुसैन साहब से मुल्तमस खिताब लग गया है रफी साहब का, क्या बात। नसीब में हजूर अपने कलाम से ये जनाब नवाजिए। मोहब्बतें हैं सब आपकी सबकी मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बलगामी साहब की जश्न बज़्म सजी है। मेरी दिली मुबारकबाद बहुत बहुत। वैसे हम बहुत पहले से सोच रहे थे आपका जश्न मनाने के लिए। हाँ तो अब वही है, कल जैबी साहिबा से भी बात हुई तो वो यही कह रही थी वक्त की बात है, कभी किसी का पहले हो जाता है कभी किसी का हो जाता है। तो क्योंकि हमने जब से सिलसिला शुरू किया हम जश्न ही मना रहे हैं, तनवीर फूल साहब शायद जानते हो। जी 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 हाँ तो हम जश्नी किसी ना किसी का हयात जिंदगी में कर लेते हैं ताकि भाई वो अपना जश्न खुद ही देख ले। बेशक तो बहरहाल आपके कलाम की पुख्तगी और अदब की मोहब्बत और मतलब अभी मैं क्या तारीफ करूं, हमारे सवाल अच्छा साहब ने और सबने आपके बारे में बोल दिया, इसमें मैं उनकी हाँ में हाँ मिला सकता हूं। और मेरी की तरफ से बहुत दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद रखे और अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा, इज्जत में इजाफा और ज्यादा। मैं आप ही की गजल को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ खैराज तहसीन के उसमें। अता करें अता। बेरुखी का ये सिलसिला क्या है, बेरुखी का ये सिलसिला क्या है, हाय उल्फत का ये सिला क्या है, हाय उल्फत का ये सिला क्या है, वाह क्या कहने। समर आवर हो गुफ्तगू कुछ तो, समर आवर हो गुफ्तगू कुछ तो, ऐसे मिलने से फायदा क्या है, क्या कहने, वाह वाह। ऐसे मिलने से फायदा क्या है, जीत मकसद से हो गई खाली, जीत मकसद से हो गई खाली, ऐसे जीने का अब मजा क्या है, क्या कैफियत बयान की है, क्या कैफियत बयान की है। मैंने भाई तुमको मैंने तुमको तो बस दुआ दी थी, ये बता दो मेरी खता क्या है, ये क्या बात बता है, दो मेरी खता बहुत अच्छा क्या शेर है। है, माशाल्लाह। जो तबाही पसंद है उनको, जो तबाही पसंद है उनको, फूंक कर बस्तियां मिला क्या है, क्या बात है, फूंक बेशक कर बेशक, क्या बात। बस्तियां मिला क्या है, सांस वाह 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 लेना वाह। भी जुर्म है शायद, सांस लेना भी जुर्म है शायद, जिंदा रहने को
اب بچا کیا ہے زندہ کیا بات ہے، رہنے کیا کو، بات ہے۔ اب اب بچا بچا کیا ہے، لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں عزیز، واہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں عزیز، ایسا بھی نور نے لکھا کیا ہے، ایسا بھی نور نے لکھا کیا ہے، برقی کا یہ سلسلہ کیا ہے، ہائے الفت کا یہ سلا کیا ہے۔ ارے واہ ارے واہ ارے واہ حضرت یہ خمار تھے ہمارے ساتھ ہدایت حسین بدایونی صاحب، اور ماشاءاللہ اپنے خوبصورت خوش الحانی کے ساتھ ترنم کے ساتھ اپنے کلام کو اور عزیز بلگامی صاحب کے کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب ڈاکٹر کمال اختر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو صدر ہیں بزم اصحاب قلم بدایوں کے، تشریف لائیں حضور، اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت لیٹ آئے کمال صاحب یہ ڈاکٹر صاحب ناظرین و ناظرین، کمال صاحب کا ماشاء اللہ آج تو قیامت ڈھا رہے ہیں بھائی ڈاکٹر کمال اختر۔ چلو بھائی امام صاحب نے کہہ دیا بہت لیٹ آئے ماشاء اللہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے اکابرین فن کی یہ محفل، محسس شورا عزیز بلگامی جیسی مایا ناز بے شک بے استاد شک الشورا استاد الاساتذہ جیسی شخصیت جہاں موجود ہے، وہ محفل یقیناً کامیاب ہوگی۔ عزیز بلگامی کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے ماشاءاللہ کہ جو مشاعرہ یہ کامیاب ہوگا، ان کی موجودگی ہر مشاعرے کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات اور ہے، ہمارا اس جشن میرا میں جو نئی ہے ٹی شرٹ بھی اچھی آپ پہنے ہوئے، کیا بات ہے۔ میرا بہت دنوں سے ارادہ تھا، سلسلہ ہم 3-4 سالوں سے یہ مشاعروں کا کر رہے ہیں، اور آج خوشی اس بات کی ہے کہ عزیز بلگامی جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے، اور آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ عزیز بلگامی کون تھے، اور ہم اس بات پہ فخر کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھا ہے، بے ہم شک سب نے ان کے بے ساتھ شک مشاعرہ بے پڑھا شک ہے، بے شک کوئی ہم شک سب نہیں ان ہے، کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے بہت بہترین کہی ہے۔ بلا شبہ بلا اور شبہ میرے کیا لیے بات ہے۔ اور میرے لیے زیادہ فخر کی بات ہوگی میں یہ کہ کہہ ان دیتا ہوں چند کی الٹے سیدھے باتیں، 2-3 جملے کہہ دیتا ہوں کہ اس محفل میں کہ جس کی صدارت تنویر پھول جیسی شخصیت ماہر فن علم داں کر رہے ہیں، اور جہاں خمار دہلوی صاحب جیسے مہمان خصوصی موجود ہیں، اور شبیر احمد پروفیسر کبیر احمد قاضی جیسے صاحب جو ہے ایک پروفیسر ہے زبان کے، ایک ماہرین فن اور زبان ہیں، یہ فیصل آباد سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اس میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ہوتی، کوئی ایک شخص ہوتا تو بھی محفل بہت ہی حد کمال کی ہوتی۔ اب بے تک شک 4 بے چاند شک لگے ہوئے ہیں، 4 چاند لگے ہوئے ہیں، تو محفل کیا ہوگی؟ جب وہی کہہ دیا تھا نا مغل اعظم نے کہ جب رات ہے ایسی متوالی تو صبح کا عالم کیا ہوگا۔ واہ ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ بات تو یہ عالم کیا ہوگا ہم ہی کہہ نہیں سکتے کچھ۔ اور اس میں کہنا چاہتا ہوں مختصر کہ عزیز بلگامی ہندوستان کے ہی نہیں، صرف بر صغیر کے ان منتخب بے شک اور بے شک چنیدہ بے شک شورا اور قومی شورا میں نہیں بس استاد الشورا استاد الاساتذہ ماہرین فن میں شامل ہیں، ماشاءاللہ بے ماشاءاللہ شک بے بے شک بے شک شک بجا تو یہ فرمایا۔ دنیا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گی، ہمیشہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اور ان کی جو قابل قدر خدمات ہیں ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، فن کے حوالے سے، یہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ صرف ایک شاعر و استاد بھی نہیں، یہ شاعر گر بھی ہیں۔ انہوں نے کیا بات اتنے ہے، کیا لوگوں بات کو ہے۔ اپنے دستے شفقت رکھ کر، جن سے شاعری کا کوئی واسطہ نہ تھا، انہیں شاعر بھی بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ بات ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج ان کے مطلب یہ استاد ہے، ان کے شاگرد اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ خود استاد بن گئے ہیں۔ بے ہاں شک ہاں ہاں ماشاءاللہ کیا بات کیا بات مطلب ان کی ہی زندگی میں ان کے شاگردوں نے استاد کی حیثیت حاصل کر لی ہے، بے شک کیا کہنا کیا کہنا تو اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا۔ میں شخصیت کے حوالے سے کہوں، اللہ نے
इनको बहुत नवाजा है, इल्म से भी, फन से भी, रिस्क से भी और माल से भी, जर से भी। बेशक। लेकिन इनमें जो है इनके साथ साथ इंसानी खूबी इनकिसारी दर्जे अतम मौजूद है। कहीं ये पता नहीं चलता इनकी मुलाकात से, खुलूस से, कि ये एक इतने बुलंद मुकाम शख्सियत है, इतने बड़े शायर अदीब हैं और इतने अमीर घराने से इनके घर से इनका ताल्लुक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इनकी बहुत बड़ा नवाजी है। मैं कुछ तफसील से नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने इनको इल्म के हिसाब से भी नवाजा है इंतहाई, और जो है माल के हिसाब से भी नवाजा है, और ये दोनों इल्म से भी और माल से भी अदब की खिदमत कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मुझे खाना के लिए भी दुआएं हैं। हमें जो इनकी शायरी में जुमला खुसूसियात जो नजर आती हैं, हम उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर शायरी में जो हाली ने 3 शर्तें बताई, कि शायरी की 3 शर्तें सादगी, असलियत और जोश, तो इन तीनों शर्तों पर इनका कलाम खरा उतरता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। शायरी के बारे में हवाले से क्या बात आले है, अहमद क्या बात सुरूर कहते हैं, आले अहमद सुरूर कहते हैं कि शायरी मसरत से शुरू होकर बसीरत पे खत्म होती है। आहा, तो इनकी शायरी बेशक। डेफिनेशन पर खरी उतरती है। इनके कलाम ऐसी सादा नहीं होता, इनमें मसरत भी है, लुत्फ भी है और बसीरत भी है। बेशक अगर बेशक। शायरी में से जो है पैगाम का काम लिया है और बसीरत उसमें है, वो शायरी आला दर्जे की शायरी बन जाती है। माशाअल्लाह। और अरे इनकी शायरी की जो सबसे किसी भी शायर की सबसे बड़ी खूबी होती है आफाकियत और जमालियात। क्या बात। आफाकियात और जमालियात ये 2 ऐसे पहलू हैं जो एक छोटे मामूली शायर को गैर मामूली शायर बना देते हैं, जिसमें बेशक पैदा बेशक। होते हैं। और बड़ी मश्क, बड़ी मेहनत, बड़ी उसके बाद आफाकियत पैदा होती है और जमालियत पैदा होती है, क्योंकि आफाकियत की भी कोई हद नहीं है और जमालियत की भी कोई हद नहीं है। क्या बात। हर आदमी कहाँ तक उसे पहुंचा कर ले जाए और कितनी मेहनत कर ले, वो आफाकियत पैदा कर सकता है और जमालियत भी पैदा कर सकता है। अल्लामा इकबाल जो है बड़ा शायर इसीलिए बना, उनकी बाकी खूबियां अलग है कि इस्लामी शायर है, उन्होंने फलसफा रखा, लेकिन सबसे बड़ी खूबी है उनके यहाँ आफाकियत। क्या बात, क्या बात। उनके यहाँ एक खूबी जो सबसे बड़ी है वो आफाकियत है। उस आफाकियत की एक खूबी उनको बुलंद पाया शायर बना रही है, और ये खूबी हमें जो है हमारे बेलगामी साहब के यहाँ मौजूद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जमालियत का पहलू ये होता है कि एक बात सादा तरीके से कही गई और उसी बात को पहले कही जा चुकी है, लेकिन बात का शायर उसमें उससे ज्यादा जमालियत पैदा कर देती, तो बड़े पुराने शायर से नए शायर का शेर अच्छा मान लिया जाता है। मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं कि पहले बुजुर्ग गिरदो पेश के बाग का पत्ता पत्ता काम में लाते चुके थे, अब नए फूल कहाँ से लाते। आगे जाने का रास्ता था, ना सड़क थी, ना चारगी, उस्तादी का नारा बुलंद करना था, तो इन्हीं चबे चबाए टुकड़ों को चबाकर अपनी उस्तादी का नक्कारा बुलंद किया। तो जितने भी हमारे टॉपिक थे, जितने भी हमारे उन्वान थे, जितने भी हमारे शायरी के मौजू थे, हमसे अता ज़दा यानी मीर के जमाने तक ही इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन पहलुओं को हमने जो है जब नए नए अंदाज से करा, तो जो है वो एक नया उसमें जमालियत पैदा कर दी, और वो जमालियत का हुस्न पैदा करा, तो वो शायर अच्छी बनी। क्योंकि आतिश ये कह गया कि बंदिश अल्फाज जरना नगीनों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। और इस मुरस्सा साजी के हुनर को हमारे बेलगामी साहब अच्छी खूबी तरह से जानते हैं, और इनके काम में आफाकियत भी है, जमालियत भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमालियत भी है। और शायर के कलाम को जब हम किसी भी फन पारे को परखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ये बातें होती है कि शायर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, और दूसरा पहलू होता है किस तरह कह रहा है। तो क्या कहने का फन और कहने की तरह, इन दोनों पे ये वाकिफ है अच्छी तरीके से, इनको पूरा उसमें अबूर हासिल है। तो इनकी शायरी में हमें जो है जिंदगी की हकीकत, सच्चाई, रानाई सब कुछ पाई जाती है। इन्होंने हमारे समाज की बदनामियों पे नजर भी उठाई, तंज भी किया, लेकिन उसको उसकी नाहमवारी को दूर करने का रास्ता भी बता दिया। एक
से नक्काद की, क्योंकि अदब की तारीफ तनकीद हयात भी कही गई है। इन्होंने अपने जमाने में जो देखा, जो सोचा, जो समझा, देखा, जो भी मुशाहिदात और इनके ख्यालात थे, उन सबको हकीकी पैराए में बयान कर दिया। और शायरी वो बन गई कि ऐसा लगता है कि इन्होंने आम बोलचाल की जुबान को शायरी की जुबान बना दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और आम बोलचाल की जुबान को शायरी की जुबान बना लेना कोई आसान काम नहीं है। बेशक, इनकी शायरी में गमे दोहरा और गमे जाना दोनों एक हो जाते हैं। गमे दोहरा भी है, गमे जाना भी है। गमे जाना बना दिया, क्या कहना। हाँ, इन्होंने दिल और दिल्ली के मरसिए भी गाए हैं और गुल्लू बुलबुल की शायरी भी करी है, लेकिन उसमें लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है, जब हमारी शायरी तनकीद के बाद से तरक्की पसंद तहरीक की तरफ चली गई थी, तो तरक्की पसंद अनासिर का लोग बिल्ला लगाना चाहते कि मैं भी तरक्की पसंद शायर हो जाऊं, भले कहे ना कहूं। तो लोग जो कुछ तरक्की पसंद नहीं थे, वो भी अपना नाम लेने की तरक्की पसंद पे कहने लगे। तो इन्होंने जो है शोहरत लेने के लिए किसी गिरोह, किसी पर की तरफ नहीं गए, ये अपना जो है राह अलग इख्तियार की और अपनी तर्ज अलग बनाई और एक साहिब तर्ज शायर हो गए। और अगर शायर को उसकी जिंदगी में लोग साहिब तर्ज कहने लगे तो इसकी कामयाबी की क्या बात कही, क्या अच्छी बात कही, बड़ा अजीम शायर होने की दलील है। और आज जो है कोई भी कलाम कहीं भी सुना जाए, देखा जाए, अजीज बेलगामी को लोग पढ़ के ही पहचान लेते हैं कि ये अजीज बेलगामी का शायर है, ताजे शायर, साहिब तर्ज शायर है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जो भाई जिंदगी की हकीकत और सच्चाई, भाई शायरी जब जिंदगी का आईना है तो हर शायर करता है, लेकिन वो करता कैसे है? वो जब ये कहे कि शायरी मेरी रुदाते जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो इनकी शायरी ऐसी है, जो पढ़े उसे लगे कि मेरी जिंदगी की तरमानी है। क्या कहना। तो इन्होंने और यही जो है आफाकियत है, यही मीर की खूबी थी, यही खूबी जो थी मीर की खूबी थी। मीर को मीर इसलिए बने, खुदाए सुखन इसलिए कहलाए गए कि उन्होंने कलाम जो पढ़े उसी को लगे कि मेरे लिए पढ़ रहा है, मेरी जिंदगी के कहली कर रहे हैं। तो वो आफाकियत और वो सच्चाई और हक़ाइक़ इन्होंने बयान की है, जिंदगी के कर्ब बयान किया है, और गजल के और फन के जितनी भी लमासमात होते हैं वो बखूबी अपनाए हैं। मैं इनका बहुत ही खैर मकदम और शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस महफिल को इख्तिताम नहीं करूंगा, मैं इस महफिल को जो है आखिर में कहूंगा मुलतवी करते हैं, क्योंकि अजीज बेलगामी का जिक्र इतना तवील है कि वो मुलतवी ही हो सकता है। बेशक बेशक बेशक, माशाअल्लाह। आप याद रख लीजिए कि अजीज बेलगामी का इसके बहुत से पहलू पिछड़ा रह जाएंगे। अभी हम ऐसी 10 महफिलें करें तो भी अजीज बेलगामी का जिक्र पूरा ना होगा उनकी। बेशक बेशक बेशक, और वजह फरमाया डॉक्टर साहब। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाली नज़माने में असरे हाजिर का जब अदब की जब तारीख लिखी जाएगी तो कोई भी मुबर्रिख, कोई भी नक्काद, इनकी कोई भी मुहक्किक इनके नाम को चश्मपोशी नहीं कर सकता। और आने वाली नस्लें इनको, इनके कलाम को और इज्जत की निगाह से देखेंगी। और जिस तरीके से जो है इधर नई नस्ल में आपके अहमद नदीम काज़मी, अहमद फराज और अजहर इनायती, बशीर बदर शहरयार, वसीम बरेलवी और कुमार बाराबंकी जैसे शोरा ने अपनी पहचान बनाई है। आज बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि अजीज बेलगामी टीम ने भी अपनी पहचान बना दी है और इनका मुकाम इन्हीं शोरा के साथ, हमारा अदब का मुबर्रिक इन्हीं शोरा की फहरिस्त में इनको इज्जत के साथ शामिल किया जाएगा और इनका नाम दुनिया अदब में हमेशा जो है इज्जत और वकार के साथ लिया जाएगा, रोशन रहेगा कि वो काम कर दिया है उर्दू जुबान में, रोशन रहेगा नाम हमेशा जहान में। क्या बात है, शुक्रिया आपकी समातों का। बस मैं ज्यादा टाइम ना लेके 2 शेर और पढ़ देता हूँ कि इजाजत के साथ साहब अजीज साहब एक मतलब कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है और सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है, सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है, सरकार दो आलम से सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है, सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है। और शेर सुनिए कि तनवीर साहब के अल्लाह ने जो बख्शा है नबुव्वत के अलावा, अल्लाह ने जो बख्शा है नबुव्वत के अलावा है फातिमा तुझसे बड़ा इनाम नहीं।
ये फातिमा तुझसे बड़ा इनाम नहीं है। और तुम्हारे साथ शेर है शब्बीर कादरी साहब के, जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत, जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत वो आशिक पैगंबर इस्लाम नहीं है। वो आशिक बेशक बेशक, वाह क्या कहने, क्या कहने, बेशक। अच्छा शेर है ये, कमाल है, क्या बात नाम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बहुत बहुत शुक्रिया सहमत तमाम। सलामत रहे साश। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। डॉक्टर कमाल अख्तर साहब अपने खूबसूरत ख्यालात से नवाज रहे थे। आप हैं साहब कलम बदायूं के, और आज आप ही की काविशों पे ये खूबसूरत शाम मुनक़िद की जा रही है। तो सामीन कराम दिल थाम लीजिए, आज अब मैं मदऊ करने लगा हूँ एक ऐसी हस्ती को, एक ऐसी शख्सियत को जिनके लिए आज की ये खूबसूरत शाम मनाई गई, जिनके लिए ये खूबसूरत बज़्म सजाई गई। तो मैं आप लोगों से मुल्तमिस हूँ कि बड़े वालियाना अंदाज से इस्तकबाल कीजिए। जनाब मोहतरम अजीज बिलगामी साहब तशरीफ लाए हुजूर। बिस्मिल्लाह। आइए अजीज भाई। अजीज भाई माशाल्लाह। ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली, जिसके बानी है चौधरी मोहम्मद नवाज गलियाना साहब, इनकी मोहब्बतों ने आज मुझे यहाँ पहुँचा दिया है जहाँ आप सब हज़रात मेरी शायरी, मेरी शख्सियत के सिलसिले में रत्बुल लिसान बन गए हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं मुख्तसर एक एक दो अल्फाज कहते हुए आगे बढ़ूंगा। यार सागर साहब की बेहतरीन अनाउंसिंग के जुलू में चलने वाली है नशिस्त, और उनकी खूबसूरत गज़ल के साथ हमने देखा कि मोहतरम तनवीर फूल साहब ने मुझ नाचिस पर एक खूबसूरत नज़्म जो बहुत तवील थी उसमें अपना दिल निकाल कर रख दिया है। फिर उसके बाद साले अच्छा साहब का क्या कहना कि उन्होंने 7 सफ़ात पर मुश्तमल एक मकाला पढ़ा और मैं हैरान था कि क्या वाक़ईतन मैं इस काबिल हूँ कि उन्होंने मुसलसल मेरी सताइश में अपना पूरा मकाला वक्फ कर दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनके ख्यालात से मुस्तफ़िद होने का मुझे मौका मिला। डॉक्टर मुख्तार हयात साहब ने भी इज़हार ख्याल में मुझ हैकर को अपनी मोहब्बतों से नवाजा, और फिर खुमार दहलवी साहब ने यादों के हवाले से कुछ बातें उनको याद आई तो फिर उन्होंने मेरी तारीफ के सिलसिले यहाँ पर पेश किए। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। फिर माले अचलपुरी साहब ने भी मेरे शेरों को लेकर अपनी तख्लीक पेश की, जिसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रईस आज़म हैदरी साहब की नज़्म भी मोहब्बतों से भरी हुई थी जो मेरे लिए रखते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर शब्बीर कादरी साहब पाकिस्तान के, उन्होंने जब कुछ कहना शुरू किया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे बारे में इस कदर तवील मकाला पेश करके मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उनके मज़ामिन पढ़े हैं तो मुझे जब उन्होंने शुरू किया तो मुझे लगने लगा कि कुछ ना कुछ ये यकीनन कमाल कर देंगे, और फिर वाक़ई डॉक्टर साहब ने कमाल कर दिया। फिर उसके बाद अख्तर इमाम साहब अंजुम, उन्होंने तौशीही नज़्म पढ़कर मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी की, इसलिए कि मैं हर प्रोग्राम में दूसरों के लिए तौशीही नज़्म पढ़ा करता था। आज कोई था जो मेरा ख्याल रखा जिसने, और उसने माशाल्लाह बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। हिदायत बदायूनी साहब ने असल में जो गज़ल पेश की वो दरअसल मुश्तरका गज़ल थी, और वो फिर मुझे याद आ गया कि मैंने किसको लेकर मैंने नज़्म कही थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने भी मेरी मुश्तरका गज़ल को ये अहमियत दी, और मोहतरम हिदायत साहब ने उसको उसमें से सिलेक्ट कर लिया और आज की
बज़्म में उसको पेश करके मेरा दिल खुश कर दिया। फिर सैयद जिया काजिम नकवी साहब के साथ कई मुशायरे मैंने पढ़े हैं डैलस के। आइए शेर कहे कि जो प्रोग्राम हुए हैं वहाँ पर उनसे इस्तेफादा मैं करता रहा और वो हमसे इस्तेफादा करते रहे, तो आज उसके हवाले से उन्होंने मुझ पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर दी। तो उसके बाद असरार मुस्तर बदायूनी साहब जो एक उस्ताद शायर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। खुसूसन उन्होंने जो हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए वो गजब के थे, मैं बहुत महसूस हुआ उनके कलाम से। फिर शाहाना नाज पाकिस्तान से थी, रावलपिंडी से, उनकी खूबसूरत गजल से मैं बहुत मुतासिर हुआ मानी आफरीनी के एतबार से। फिर उनके इज़हार ख्याल में जो गहराई थी, जो गहराई थी, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी साहब ने जो बातें की उसमें मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी। उनकी मुलाकात तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने कबल हुई है, लेकिन उस कदर मुतासिर थे कि आज उन्होंने भी अपना दिल निकाल कर रख दिया। फिर डॉक्टर कमाल अख्तर बदायूनी साहब के बारे में क्या कहूँ, वो कैसी कैसी बातें कह गए, और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या मैं वाकई उन अजीम ख्यालात का मुस्तहिक हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नेमत मुझे आज मैसर आई है कि आज आप हजरात की मोहब्बतों यही से सादा दिली आपको जो है ये हक है, हक था जनाब, आपका हक था, ये हक अदा किया गया है, आपका हक था जनाब, आपका हक। मैं आपकी मोहब्बतों से सरशार हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ दो वजूहात पर, तीन बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह पर। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बुनियाद ये कि मेरी जिंदगी में मुझ पर यहाँ कर्नाटक यूनिवर्सिटी में पीएचडी का मकाला लिखा गया, तिरुपति यूनिवर्सिटी में एमफिल का मकाला मुझ पर लिखा गया, और आज मेरी जिंदगी में आप हजरान ने मेरा जश्न मनाया, और मैं इस जश्न के ऐलान तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस काबिल में बनूंगा, मुझे एक जश्न में किया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि वक्त खत्म, बहुत कुछ कहना चाहता था आपके बारे में, जज्बात का एक समंदर है मेरे अंदर, मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी खुशियों का कोई अल्लाह ताला सलामत और शाद रखे। आपकी दुआओं से सरशार हूँ, आपकी मोहब्बतों से सरशार हो गया हूँ। मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं अपनी अता कीजिए। इरशाद आली मोहतरम अर्ज करता हूँ कि एक सागर साहब हजूर हजूर मसला देखिए कि एक बहता हुआ दरिया मेरे अंदर होता, एक बहता हुआ दरिया मेरे अंदर गजल होता है। में कुछ शेर ऐसे हैं जिसका जवाब जश्न अजीज बलगामी है। आप खुद अरे बता। अरे वाह, एक बहता हुआ दरिया मेरे अंदर होता, वाह, काश मेरे भी मुकद्दर में समंदर होता, क्या बात है, वाह क्या बात है। काश मेरे भी मुकद्दर में समंदर होता। एक बहता हुआ दरिया मेरे अंदर होता, काश मेरे भी मुकद्दर में समंदर होता। मेरे बालों की सफेदी का सबब धूप नहीं, मेरे बालों की सफेदी का सबब धूप नहीं, आपकी सोच का रुख कुछ तो मुनव्वर होता, सोच का रुख कुछ तो मुनव्वर होता। अर्ज करता हूँ मेरे अफकार के अगर आप भी कायल होते, मेरे अफकार अगर आप भी कायल होते। मेरे अशार का चर्चा यहाँ घर घर होता, क्या बात है, सच है, क्या यहाँ घर बात घर होता। और यही जश्न अजीज बेलगामी इसी शेर का जवाब है। अर्ज करता हूँ कदरदानी की उम्मीदों में हुई उम्र तमाम, कदरदानी की उम्रों में हुई उम्मीदों में हुई उम्र तमाम, अपने कंधों पे भी एक तोहफे चादर होता, क्या बात है। चादर होता। आपने वो तोहफे चादर से बढ़कर आज नवाजा है, मैं उससे शराबूर हूँ। आपकी मोहब्बतों से चादर की क्या हकीकत है, कदरदानी की उम्मीदों में
हुई उम्र तमाम अपने कंधों पे भी एक तोहफे चादर चादर होता। होता। आखिरी शेर है, मौत की शक्ल में अल्लाह ने अजमत दी है। मौत की शक्ल में अल्लाह ने अजमत दी है, जिंदगी कौन भला तुझ पे निछावर होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिंदगी जिस पे भला मौत बहुत की निछावर शक्ल होता। में अल्लाह ने अजमत दी है, क्या कह रहे हैं? मौत की शक्ल में अल्लाह ने अल्लाह ने अजमत दी है, जिंदगी कौन भला कौन भला तुझ पे निछावर होता। निछावर होता। मक्ता पेश खिदमत है, आखिरी सांस का लम्हा भी चला आया अजीज। आखिरी सांस का लम्हा भी चलाया अजीज। तनवीर साहब मक्ता देखिए, आखिरी सांस का लम्हा भी चला आया अजीज। काश हमराह तेरे तो शे महशर होता। क्या कह रहे हैं? ओ हो क्या बात है, क्या बात है। तो शे महशर होता। क्या बात है, बहुत आखिरी खूब। सांस का लम्हा भी चला आया अजीज। क्या काश कह रहे हैं? हमराह तेरे तो शे अच्छा, महशर ये होता। क्या बात है। एक बहता हुआ दरिया मेरे अंदर होता। क्या काश कह रहे हैं, क्या कह रहे मेरे हैं? भी बहुत खूब, बहुत खूब। मुकद्दर में समंदर होता। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं आप, माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। क्या बात है। अल्लाह जो है माशाल्लाह बड़ा मजा आया आज आपकी उम्र जावेदानी अता करे। क्या बात है। हवाले से। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अब मेरा नाम जो है आपकी शाम के हवाले से ये रिकॉर्डिंग महफूज माशाल्लाह, रहेगी और ये लोग सुनेंगे तो मुझे भी याद करेंगे आपके हवाले से कि आपकी शाम की खूबसूरत इस महफिल मैंने में नजामत की। मेरे जैसे खाकसार अदना से इंसान के पास क्या बात है। क्या कह रहे ने आपको बेशक। रिफत और बुलंदियों से नवाजा और मजीद आपके लिए बहुत सारी आमीन। दुआएं। आमीन। खुदाया आज की इस खूबसूरत शाम में तमाम लोग बहुत मेरे मुअज़्ज़िज़ सीनियर अहबाब सारे तशरीफ लाए और हर किसी ने अपने अपने खूबसूरत लफ्ज़ों में अपने पैगामात, अपनी बातें, जो ख़यालात ये वो पेश किए। तो अब चूँकि प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, मैं मजलिस सदारत की जानिब बढ़ूँ तो अपने सदारती कलिमात अता फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। भाई अजीज रहमतुल्लाहि व गुलामी बरकातहू। साहब को बहुत बहुत मुबारक, बहुत 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 शुक्रिया, मुकर्रर मुबारक बार बार। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको और इसी तरह तरक्की अता फरमाए आमीन आमीन। और आमीन उम्र तवील अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती से आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन कि अल्लाह ताला हमको, हम लोगों को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। आमीन। आमीन। दो अशार पेश कर देता हूँ। अता अता बचा रुसवाई से हमको जहाँ में और उक़बा में, बचा रुसवाई से हमको जहाँ में और उक़बा में, वाह कि हम तेरे ही बंदे हैं, हमारी लाज तू रख ले। हम सब की वाह तरफ वाह से, आमीन। पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, वाह 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 बचा रुसवाई से हमको जहाँ में और उक़बा में, कि वाह। हम तेरे ही बंदे हैं, हमारी लाज तू रख ले। क्या कहने, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा के आला, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु नाम लेवा हैं इलाही हम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम लेवा हैं इलाही हम, छुपा ले सारे ऐबों को, हमारी आबरू रख ले। वाह छुपा ले आमीन। सारे ऐबों सुभान को, अल्लाह सुभान हमारी अल्लाह। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबको बहुत ज़्यादा हो जी गया। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सल्लल्लाहु तआला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा रहीम मालिक यौमिद्दीन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वत्तक़िना इमामा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंता वली फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमान व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुहमिलना
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد صلlallahu alaihi wasallam. माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो मीर सर में सभी का नाम ले लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी, अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी, अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी बेची, अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी बेची, अगर उसने नाजरीन, ये थी जश्न अज़ीज़ बिलगामी की रुदाद, जिसे 3 हिस्सों में पेश किया गया। अपनी राय से नवाजें। अब अज़ीज़ बिलगामी को इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत